children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani and we are meeting for this special session. आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि मैम हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमने इतनी डिटेल में प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस हमने पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस करने हैं. देखो बेटा, आई ऑलवेज से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंकर एंड अ नॉन रैंकर, है ना. आप कितनी भी नॉलेज एकत्रित कर लो, कलेक्ट कर लो, बट इफ यू डोंट अप्लाई इट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, नीट सिलेक्शन बिकम्स अ चांस. या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो हाउ डू आई श्योर दैट यू डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक इन नीट एग्जाम इज टू डू द रियल थिंग. Yeah, the paper is about multiple choice questions. Every question is going to fetch you 4 marks and the rank is about those 4 marks. है ना? So these sessions are they are the icing on the cake, aren't they? So today we are going to solve questions which have been asked in NEET previous years from the entire chapter biological classification. If you have attended the classes that I've taken regularly, the 10 lectures that ma'am has taken for this chapter, wherein we have spoken in depth about each and every group, each and every kingdom rather. Yes, then, and you're reading NCERT, and you're taking down the notes. Now you solve questions and nobody can stop you. Nobody can stop you from getting selected. So these are the baby steps, the essential steps that one has to take to become a ranker. So let's begin. Yeah? Now the very first question, people, before I give you the question, remember, in order to make your preparation a surety towards success, how to become the winner by doing things differently, download the Akash Baiju's app, which will give you the edge in your preparation. Yes? So explore this app free of cost for 14 days. Explore all the features which are on the app. If you want to talk to a counselor, you can book a counseling session as well. And you can book free demo classes with any of the teachers. So explore all these lovely features and mark your road to success. Now in this Mission MBBS 2024 series, all your favorite teachers come live 4 to 8 p.m. Monday to Friday. Yeah, you meet these teachers regularly. Make it a point that you don't miss classes, whether it is zoology, botany, physics or chemistry. Yes, the more regular you are, the more hammering and more cementing of the subject happens. And then the Akash Baiju's mock test, the India's largest, the most fruitful mock test, if I have to say, designed by Akash Baiju's experts who know every fabric of the NEET exam. Yeah, the test has happened. One of the mock tests happened on 3rd of July, and you must have seen the paper, the mock test was discussed in detail by all us teachers on 4th of July. Yeah, there's another mock test which is happening on 10th of July. You can register for that mock test and get the real feel of the NEET paper. Now people, the first question right in front of you. So this particular question, people, it has been asked in NEET 2016 and NEET 2017. 2 years. The same question, consecutive years. So you see why I have kept this session, to give you a feel, to let you know that all the hard work that we have done together in the class, how we have studied this chapter, you are working hard and making your notes. The application happens like this in the NEET exam. The question is match the following question. Understand that match the following is a very important type of question or pattern of question which is asked in the NEET paper. So you have true and false kind of questions. You will get match the following questions. You will get diagrammatic questions. Yeah, we are going to practice all of this. Yes, and I hope you are attending the NCERT line by line classes that ma'am is taking. We have done Monera, Protista. We have also done fungus. Nope. We've done Monera and Protista. We're also going to do line by line reading of fungus in the next class. Yeah, I'm going to be taking out 35 questions only from kingdom fungus, only from kingdom mycota, और question तो उसी में से आएगा. तो अब ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं आंसर्स देख पा रही हूँ, वेरी गुड, मैच द फॉलोइंग, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दिस. इफ आई टॉक अबाउट लाइकेंस,
I taught you lichens. Yes, just in the previous class itself. Lichens are a symbiotic association of the algal partner and the fungal partner, mycobiont and phycobiont. और मैंने बताया था कि जहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे लाइकन को पसंद नहीं रहता है, वो एरिया वो ग्रो नहीं करता है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइकन्स इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड व्हाट काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड. मार्क करके जाइएगा. उसके बाद प्रायंस. मैंने पढ़ा है प्रायंस क्या है? दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. कोई डाउट? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड केपेबल ऑफ डूइंग डिसीजेस. डिटेल में बताया था क्लास में. तो प्रायंस कौन सा डिजीज करते हैं? दे कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस. यस मैम. सो इन कैटल वी सी मैड काउ डिजीज, बट दे कैन अफेक्ट ह्यूमंस एज वेल. कमिंग टू वायरॉइड्स, smaller than viruses. Yeah, what are viroids? They are RNA particles without the protein coat. Major difference between viruses and viroids. Without the protein coat. There we go. So easy, so informative, such a wholesome question. है ना? उसके बाद what are viruses? Bacteriophages are a type of viruses which infect the bacterial cells. स्ट्रक्चर भी किया था हमने क्लास में. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट टू 2015 पीपल. The imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. Please share the session with everybody you know. Question sessions, these NEET drill sessions are extremely important for the entire preparation and not merely finishing the syllabus. है ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर ऑल द करेक्ट आंसर्स. ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था. 2015 में ये पूछा गया था कि वो कौन सी फंगस है जो इम्परफेक्ट है. और मैंने आपको बताया है कि फंगस को इम्परफेक्ट तब कहा जाता है जब उसमें सेक्सुअल फेज विच इज कॉल्ड द परफेक्ट फेज एब्सेंट होता है. और ऐसे फंगल मेंबर्स के लिए वी हैव आर्टिफिशियली क्रिएटेड ड्यूटेरोमाइसिटीज. है ना? बट दे आर सपोज टू these fungus are assumed to be actually ascomycetes which are not performing sexual reproduction. है ना? वो सब कहानी याद रहनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन में जो आंसर गिविंग पॉइंट था वो यही आ गया था. है ना? जो समझदार है उसको यहीं पे आंसर मिल गया. फिर इसने ये भी बताया कि ड्यूटेरोमाइसिटीज डीकॉम्पोजिशन में हेल्प करती है. तो अब डीकॉम्पोजिशन और मिनरल साइक्लिंग क्या है ना? ये दोनों प्रोसेसेस डीकॉम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग बहुत ज्यादा डिटेल में है. बड़े बच्चे जानते हैं जो क्लास 12th में है. इकोलॉजी में फुल फ्लेज टॉपिक्स है हमारे पास अबाउट मिनरल साइक्लिंग एंड डीकॉम्पोजिशन. नेवरदलेस फॉर माय छोटा बच्चास आई एम गोइंग टू पुट इट इन योर हेड लिटिल बिट, सॉफ्टली. सो पीपल देखो, सोचो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, चाहे वो प्लांट मरता है, एक पत्ता है या एक फूल है, या कोई एनिमल मरता है, बड़ा या छोटा, सपोज कीड़े मरते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ देम आर ऑन द ग्राउंड. नाउ देयर इज अ सिस्टम ऑन आवर प्लैनेट कि ये जो डेड पार्ट्स हैं ये कलेक्ट ना हो जाएं, है ना? तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और धीरे धीरे ये सारे मरे हुए ऑर्गेनिजम्स, प्लांट पार्ट्स मिट्टी में मिल जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन. अब जब ये डीकॉम्पोजिशन होती है तो इन डेड बॉडीज से मिनरल्स निकलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी, प्लांट की बॉडी इज फुल ऑफ मिनरल्स, है ना? तो वो मिनरल्स जो निकलते हैं डीकॉम्पोजिशन से वो सॉइल में मिल जाते हैं, है ना? तो सॉइल से जो मिनरल्स हमने लिए जब प्लांट ग्रो कर रहा था या जब हम जिंदा थे, वो सारे मिनरल्स वापस आ गए. सो दिस इज अ साइकिल. वॉट एवर वी टुक फ्रॉम द सॉइल कम्स बैक टू द सॉइल. तो ये प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक्टीरिया करती है, फंगस करती है. तो कौन सी फंगस करती है? ड्यूटेरोमाइसिटीज करती है, राइट? सबको समझ में आ गया? रटना तो हमने है ही नहीं, नॉट अलाउड. अब नीट 2017 का क्वेश्चन बच्चों. कीप द जोश ऑन, कीप द फायर ऑन एंड यू विल बी द नीट रैंकर. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मैम तो है ही, चाहे वो नीट की प्रैक्टिस है, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे वो सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझना है ना? फॉर एवरीथिंग मैम इज हियर. बस आपको साथ में चलते जाना है. सो वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, है ना? ये काफी ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है. तो क्या बेसिक डिफरेंस है? व्हाट इज द आइडेंटिफाइबल
tangible difference between the two. And viroids are smaller than viruses, I tell you. अच्छा, याद रखिए, थैंक यू फॉर ऑल द आंसर्स. याद रखिए कि viruses and viroids do not have a place in the biological classification. We're not putting them in any kingdom. याद रहेगा ना? So, congratulations for all your correct answers. You're doing great. यही accuracy जो आज क्लास में है वो कल को एग्जाम सेंटर में होने ही वाली है. हाँ, सो बच्चों, वायरॉइड्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इसमें डीएनए नहीं आरएनए रहता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. लेकिन इसके पास वायरस की तरह, देखो वायरस को ना इतनी वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन इतनी इजीली इसलिए कर पाते हैं बिकॉज इनका ये जो प्रोटीन कोट है ना ही इनको प्रोटेक्ट करता है, ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, इट इज प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द वायरस, डीएनए और आरएनए, एंड ऑल्सो हेल्पिंग द वायरस टू अटैच टू आवर सेल्स. और वायरस की जितनी बढ़िया अटैचमेंट होगी ना बच्चों, वो उतना ज्यादा इन्फेक्टिव, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा. ओके, सो वायरॉइड्स के पास ऐसा नहीं है अभी तक, बट म्यूटेशन से कुछ भी हो सकता है. सो एट प्रेजेंट दे आर आरएनए पार्टिकल्स विदाउट एनी प्रोटीन कोट. या रिमेंबर दिस, अगर कुछ ना याद रहे वायरॉइड्स के बारे में, ये याद रहना बहुत जरूरी है. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें नहीं आता है, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पैनिक. उदास होने की, दुख की कोई भी बात नहीं है. You can always revise the concept. You can go back and refer to the notes that you get after the class. You can refer to NCERT. You have all the sources possible. है ना? Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall? Pathogenic to plants. उसने सारे ही आपको hints दे दिए. Pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen. इसके पास इतनी सारी पावर है, इसको आप ऑक्सीजन ना दो ये जिंदा रह लेगा. इसके पास सेल वॉल भी नहीं है. And they are the smallest living cells. Come on people, all these features we have done in the class. What do you think? Now if I start underlining the hints which are given in the question, entire question is full of hints. The examiner has actually written the definition. You know what is a definition? What is a definition? Definition is sum of all those words which will identify something. जो उसका स्पेशल फीचर है, जो सिर्फ उसी का ही है. जैसे हमारा नाम होता है, दैट इज आवर आइडेंटिटी, है ना? तो इसीलिए जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं तो उसमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं by which you can pick that particular person, thing, process, whatever is defined. So he is defining very good if you have answered mycoplasma. अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है. इसी क्वेश्चन को आज 2017 में उसने सिर्फ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है. कल को 2000 मान लीजिए आप 24 में बैठ रहे हैं, 23 में बैठ रहे हैं, he can reverse the question. He can ask you which of the following features belong to the organism mycoplasma or the defining features of mycoplasma. तो ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. तो ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है. अब आप कहोगे मैम आपने वायरॉइड बोला, वायरस से भी छोटा है. भाई वायरॉइड को हम लिविंग वर्ल्ड में मानते ही नहीं है. वायरसेस और वायरॉइड्स को हम लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो ये गलती ना कीजिएगा. नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल. देखो मोनेरा किंगडम में अपन ने बोला अच्छी खासी सेल वॉल है बैक्टीरिया के पास जो उसको शेप देती है. क्या देती है? शेप देती है. माइकोप्लाज्मा ने बोला मेरे को सेल वॉल नहीं चाहिए. तो इट कैन अटेन नंबर ऑफ शेप, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिज्म. हाँ, प्लियोमॉर्फिज्म. कहीं भी जाके अटैच भी हो जाता है ये. एंड ये प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेटरी डिजीजेस करता है. इसको पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना? क्योंकि सबसे पहले ये मिला था फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड. बोले तो मैंने क्लास में समझाया,
lungs का fluid, pleural fluid of cattle, and mad cow disease. The cow, the affected cow, is lethargic and doesn't eat and salivates and basically can't function properly and dies. अच्छा, ये it can cause the same respiratory disorder in humans as well and other kinds of diseases. अच्छा, इसका एक ये है कि it can survive without oxygen. That is also, इससे क्या होता है, इसकी disease causing capacity बढ़ जाती है ना? So next is again NEET 2017 question, people. Read the question carefully. Why I am conducting this session is the way you read the question, the way you approach the question sort of decides whether you're going to answer accurately or inaccurately. जिस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो निश्चित करता है कि आप क्वेश्चन को सही आंसर, सही मार्क करेंगे या गलत मार्क करेंगे. हाँ, so a question will always have the hints for the answer. Which of the following components provides sticky character, to the bacterial cell? The first or the second lecture of this chapter, biological classification, I think second chapter, I have spoken very nicely about this. And I'm going to give you one more hint. I use the word gummy character to the bacterial cell. Come on, people. Has to be. These questions, if you are my student, regular student, all the NEET previous year questions and future questions are yours. So, congratulations if you have marked C option, which is glycocalyx. तो बैक्टीरिया का मैंने एक आपको छोटा सा नन्ना सा चार्ट बना के दिया था कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को आउटसाइड टू इनसाइड पढ़ें. तो आउटसाइड इज द ऑनवेलप. हाँ, जैसे चिट्ठी को ऑनवेलप में डालते हैं, वैसे बैक्टीरियल सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऑनवेलप किया हुआ है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स ने. सबसे बाहर ये इसके पास एक्स्ट्रा लेयर है, फिर आपके पास वॉल आ जाती है, सेल वॉल, और फिर आ जाती है मेम्ब्रेन. इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की हो सकती है. इट कैन बी ईदर स्लाइमी और इट कैन बी अ लिटिल रिजिड कॉल्ड एज द कैप्सूल. तो इसको स्लाइम लेयर या कैप्सूल बोलते हैं. भाई दोनों का ही मोर और लेस यही फंक्शन है कि ताकि बैक्टीरियल सेल डेसिकेट ना हो जाए. हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया का क्या है, वो कहीं भी हो सकता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में. तो भाई अगर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो ये बैक्टीरिया श्रिंक होके ना मर जाए, बर्स्ट होके ना मर जाए. सो इस वजह से इसको ये प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है और इससे बैक्टीरिया एडहियर्स टू द सबस्ट्रेटम. अब वो सबस्ट्रेटम कोई भी हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, ये तो कहीं पे भी होते हैं. ये पत्थर हो सकता है, ये हमारा सेल हो सकता है, ये कोई भी एनिमल का सेल हो सकता है, ये प्लांट की बॉडी हो सकती है. तो इसमें हमें एडहियरेंस का जो फंक्शन है वो उसने पूछा है कि व्हाट प्रोवाइड्स स्टिकीनेस और गमीनेस to the bacterial cell, helping in the adherence or attachment, is nothing but the glycocalyx. Okay, so I'm discussing every question to give you reminders. These are called concept reminders. What is ma'am doing right now? Concept reminders. And you have to do it with yourself also. Yeah? Remember, if you don't have concept reminders, preparation is not happening. It is all about the revision, reminder. Okay. Now people, Archaebacteria differ from Eubacteria. भाई ये क्वेश्चन तो अभी 2014 क्या, ये तो जब से मैं नीट का एग्जाम देख रही हूँ तब से ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है. अब देखो हमारे लिए क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैटर नहीं करती, कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है. क्योंकि मोनेरा में भी अगर आर्कीबैक्टीरिया इस दुनिया में नहीं आते, यू नो व्हेन देयर वाज एंशिएंट अर्थ, तो शायद लाइफ नहीं होती. Okay, so they are special. So how are they special from the bacteria that we find in everyday life, the modern bacteria, so to say?
All right. Now these are all 30-second, 20-second questions, along with a lot of accuracy. Very easy questions. अच्छा, ये सेशंस जो क्वेश्चन सेशंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू want more and more neat drill sessions, as I want to call them, and you want ma'am to practice previous year questions with you, because this is exactly what is going to give you confidence. अपने को ये भी पता लग रहा है कि हमारी कितनी तैयारी है, अपने को ये भी पता लग रहा है कि हमारे की चैप्टर में से इतने भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, चिंता की कोई बात नहीं है, और ये भी पता लग रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हो ना हो यार इम्पोर्टेंट है, हम चाहे माने ना माने, है ना. सो कंग्रेचुलेशंस इफ यू हैव मार्क्ड ए सेल वॉल. भाई जाहिर सी बात है, मैंने क्लास में ये लिखवाया है आप लोगों को, इफ यू आर इन ट्यून विद द नोट्स दैट आई गिव इन द क्लास, कि सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ यूबैक्टीरिया. भाई इधर सूडोम्यूरिन है, उधर म्यूरिन है या म्यूकोपेप्टाइड है यूबैक्टीरिया में, फिर यहाँ पे ब्रांच चेन लिपिड्स हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है. तो ब्रांच चेन लिपिड्स है, इस वजह से आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी, एसिडिटी में रह लेते हैं. रिमेंबर द 3 कैटेगरीज, रिवाइज ऑल ऑफ दैट इन योर हेड. It should be a spark of concepts that should happen with questions like these. Methanogens, thermoacidophils. याद आ रहा है? So all of this you have to revise. उसके बाद आता है which structures perform the function of mitochondria in bacteria. Again a very easy question taught to you nicely in the class. हाँ कि भाई बैक्टीरियल सेल ठहरा प्रोकैरियोट सेल. मैम तो और हिंट्स दे रही हैं, है ना. एग्जाम सेंटर में मैं हिंट नहीं दूंगी इस तरह से. तो वो ये पूछना चाह रहा है कि देखो भाई बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पास काहे का माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होगा नहीं बेचारे के पास. और रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो एटीपी कैसे बनाएगा, एटीपी नहीं बनाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा. जिंदगी का नाम है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एवरी सेल, है ना भाई. सो भाई बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर है, यू शुड आंसर दिस इन योर स्लीप. कंग्रेचुलेशंस इफ यू मार्क डी, मीजोजोम्स. सो आई टोल्ड यू बैक्टीरियल सेल में ना, मैंने बना के भी दिखाया था क्लास में, अगर ये आउटर ग्लाइकोगैलिक्स है, उसके बाद अपनी आ गई जी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद अपनी आ जाती है जी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनल नहीं है यार, कौन करेगा फिर जरूरी काम. कौन करेगा जरूरी काम. तो सेल मेम्ब्रेन ने बोला ठीक है मैं ही कुछ करती हूँ. उसने इस तरह की इनवैजिनेशंस बनाई. इनवैजिनेशन का मतलब क्लास में मैम ने समझाया था, इन ग्रोथ को ही इनवैजिनेशन बोलते हैं. इन बोले तो अंदर, ग्रोथ बोले तो भाई स्ट्रक्चर बनाया इसने. ये सैक, अच्छा इनकी शेप ना, they can be tubular, they can be vesicular, they can be filiform. What does this mean? किसी भी शेप में फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होकर ये जगह क्यों बना रही है, ताकि यहां पर ना रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आ सके थोड़े बहुत है, और बेचारा बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट एटीपी तो बना सके. जिंदा ही नहीं रहेगा वरना. भाई उसको जो भी मिल रहा है बेचारे को, चाहे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, चाहे वो कोई कीमोसिंथेसिस कर रहा है, इस तरह से वो. अच्छा ये बाकी चीजों में भी हेल्प करती है. देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो. अपन प्राइमरी फंक्शन इसका याद रखेंगे, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन एंड होल्डिंग ऑन टू रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में, करता है या नहीं करता है. कहानी सारी माइटोकॉन्ड्रिया की वहां पे है ना. रेस्पिरेशन जो मैराथन सेशन था नीट एस्पिरेंट्स के लिए, है ना, वीकेंड पर सैटरडे को, अगर आपने वो अटेंड किया, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आती है. सो मेनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर इट. सो लाइक आई प्रॉमिस्ड यू, यू आस्क फॉर इट, आई टीच. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. Whatever you need, we are there for you always and always, 24 hours. 365, not 365. How many ever days are left to your NEET exam? तो उसमें अगर आपने रेस्पिरेशन वाली वो क्लास आपको पक्का अटेंड करनी चाहिए. फोटोसिंथेसिस,
रेस्पिरेशन, ये जो 2 चैप्टर्स हैं जिसमें दिक्कत आती है उनको अच्छे से समझने के लिए। हाँ, तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया में होता हुआ देखा रेस्पिरेशन, हमने देखा कैसे क्रेब्स साइकिल हो रहा है, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। तो वो फंक्शन बेचारे को मीजोजोम को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटाइल बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया चल सकता है, मोटाइल है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको चलाता है? ये भी मैंने क्लास में, कोई है अगर जिसको एग्जैक्टली याद है कि मैंने क्या बताया था कि ये क्वेश्चन आता है और लोग गलती करते हैं, मैंने गलती भी बताई थी, वो जरूर चैट सेक्शन में लिखें। गिव मी अ थम्स अप इफ यू रिमेंबर। सम ऑफ यू आर रेगुलर टू द क्लासेस। अब ये 2014 का क्वेश्चन है, मुझे ये भी पता है 2014 में मेरे ही बच्चों ने किसने सही किया था और किसने क्यों गलत किया था, और उस एक्सपीरियंस से कि ऐसे गलती हो सकती है इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में, आई एम जस्ट इम्पार्टिंग द सेम टू यू कि आपकी गलती ना हो। सो देखो, बैक्टीरिया में, मोनेरिन्स में अगर लोकोमोशन बोले तो मोटिलिटी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो यार जनता को कंफ्यूजन रहती है कि इज इट सीलिया, इज इट पिलाई, इज इट फिम्ब्रे। बच्चों, मोनेरिन्स में मैंने क्लास में भी बोला है, जिसको भी याद है, वेरी यू आर ऑन द राइट पाथ, इट इज ओनली फ्लैजिला। इनको गिन चुनकर थोड़े बहुत फ्लैजिला मिले हैं। फिर मैंने आपको फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी करवाई थी, है ना? सो देयर इज नो end which I have left opened when it comes to knowledge of every kingdom, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना बना पाए कोई कहीं किसी पेपर में जो आप ना कर पाए। तो बच्चों, लोकोमोटरी ऑर्गन अगर आपने फ्लैजिला मार्क किया है, वेरी गुड। सीलिया मार्क किया है, नॉक योर हेड। यार सीलिया मोनेरा में नहीं है, प्रोटिस्टा में आएंगे। हाँ, so that is one of the features of evolution that has happened. आया? अच्छा, what is the गलती that you do for Fimbriae and Pilae? ये भी मैंने बताया है। Fimbriae and Pilae are even smaller. ये था ना बैक्टीरियल सेल हमने बनाया था। बैक्टीरिया की बॉडी पर पिलाई और फिम्ब्रे सब बैक्टीरिया में नहीं है, ओके जिस तरह से फ्लैजिला भी नहीं है। दीज पिलाई और फिम्ब्रे हेल्प इन अटैचमेंट, ये इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मैंने आपको कॉन्जुगेशन पढ़ाई थी, कितने लोगों को याद है? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। यस मैम, आई रिमेंबर कॉन्जुगेशन, इम्परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार तो यहां पर जो सेक्स पाइलस बनता है टू ट्रांसफर द contents from F positive to F negative, this sex pilus पिलाई ने बना दिया। Now next question guys, pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are, come on, think about cyanobacteria, blue green algae. What has ma'am taught you? Something very amazing about cyanobacteria. These are the members who first helped this planet to get oxygen. Oxygenic photosynthesis, the pioneers of oxygenic photosynthesis. ऑक्सीजन नहीं आती तो कोई नहीं आता। बहुत इजी है यार, मुझे पता है इसमें गलती क्या करेंगे बच्चे, ये भी पता है। 2013 का क्वेश्चन है, 23 का भी हो सकता है। मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आने की है। ओके बच्चों, तो आंसर हेटेरोसिस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन उठाया ही इसीलिए था मैंने। तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया जब पढ़ाया था, इसके 2 फीचर्स थे कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जम के फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये किसी के साथ भी रह लेते हैं इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यस मैम, अभी मैंने बोली कुछ टर्म्स, वो भी ध्यान होनी चाहिए। अब साइनोबैक्टीरिया की ब्यूटीफुल बात यह है कि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं यार, लाइक हायर प्लांट्स। इसके पास क्लोरोफिल ए और बी है, along with of course other pigments. तो वो pigments are present in membranous extensions called chromatophores. Chromato बोले तो color, pigment. Okay, and 4 word usually is for the extension. Conidiophore.
सो कोनिडियोफोर क्या है भाई? माइसीलियम का ही तो एक्सटेंशन है, हाईफाई तो है, बोले तो 4 इज एक्सटेंशन, बात खत्म। बायो से इजी क्या है भाई? बॉटनी से इजी तो बना ही नहीं कुछ, है ना? सो द टैग लाइन ऑफ द क्लास शुड बी बॉटनी से इजी कुछ नहीं है। क्वेश्चन इसी क्लास में से आएगा। ऑलराइट फोक्स, हेटेरोसिस्ट क्यों नहीं मार्क करेंगे? अगर उसने पूछा होता कि वो साइनोबैक्टीरिया, सारी साइनोबैक्टीरिया नहीं, वो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है भाई, नॉस्टॉक और एनाबीना, such a nice name, no? Anabina, what a beautiful name. So this Anna and Bina, okay, one organism, and nostoc are the nitrogen fixing cyanobacteria. इनके अंदर आपको स्पेशल सेल्स मिलेंगे, थिक वॉल्ड सेल्स मिलेंगे, हेटेरोसिस्ट। उनमें पिगमेंट नहीं है, उनमें पिगमेंट नहीं है। Okay, so those cells have the capacity to fix atmospheric nitrogen, and they are found in symbiotic association. All right, people, this is one of the lines from the class, the statements that I have made in many classes while I was teaching you biological classification. Maximum nutritional diversity is found in which group? Is it fungus? Is it Animalia? Is it Monera? Is it Plantae? अरे भाई, इससे इजी क्वेश्चन तो प्लैनेट पे नहीं है। कम ऑन गाइस, दिस शुड बी 100% करेक्ट आंसर। प्लीज, हाँ, पे रिवॉर्ड टू योर ओन एफर्ट्स। इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, you're doing a lot of effort for yourself, and that is definitely going to pay you back at least 3x. So efforts never go in vain. All right, folks, I kept repeating it every time क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जामिनर का फेवरेट है। तो बच्चों, फंगस, अच्छा मैंने ना पहला लेक्चर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हुआ था, इनफैक्ट मिशन MBBS 2024 जो आपका बैच है, उसकी जो पहली क्लास थी ना, उसमें मैंने न्यूट्रिशन पे काफी लंबी बात की थी, क्योंकि दैट इज द बेसिस ऑफ व्हेन यू स्टडी एनिमल किंगडम, व्हेन यू स्टडी एनी किंगडम, you know the organism with what it eats. तो फंगस घूम फिर कर बोलती है no complication, I am going to be mostly saprophytic और parasitic, किसी और से खाना ले लूंगी या डेड मैटर से खाना ले लूंगी। आया? एनिमिलिया ने बोला ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है भाई, हम होलोजोइक इंजेस्टिव न्यूट्रिशन करेंगे, हम खाने को अंदर लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स पैरासाइट्स तो मिलेंगे। एनिमल किंगडम में जब तुम फाइला पढ़ोगे जूलॉजी में, तुम्हें मोस्टली ये मिलेगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें सारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, और मैंने क्लास में वो लिखवाई थी। ऑटोट्रॉफिक, फोटो, कीमो, खोल लो नोट्स while you have the chance. So parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, absorptive mode of nutrition, they can take out energy from just anything. That is the crux of the, and Plantae, they are autotrophic, शरीफ है बेचारे, चुपचाप फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबको, पूरे ब्रह्मांड को खाना देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। अच्छा, let me know in the comment section if you loved the class. Those of you who are a little ahead in the preparation, जो बड़े बच्चे हैं जिन्होंने मैराथन सेशन अटेंड किया and they absolutely loved the class on photosynthesis, you never studied light reaction like this, or it gave you a lot of confidence to revise Kelvin cycle, and same goes for respiration, है ना? So we are going to be doing many more sessions like this, and that is why you should subscribe to this amazing channel. All right, which of the following statements about mycoplasma is wrong? फिर से एक क्वेश्चन आ गया, mycoplasma स्टार है, mycoplasma weird organism है, क्वेश्चन आते हैं। Are they pleomorphic? I don't know. They are sensitive to penicillin. What is penicillin? Penicillin कोई दवाई सी लग रही है। मर जाते हैं क्या पेनिसिलिन से? अच्छा, इसमें ना क्लास में जो था उसको मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं। इट्स योर सेकेंड ईयर MBBS सब्जेक्ट, फार्मेकोलॉजी।
व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दवाई. और अगर किसी ने वो थोड़ा भी सुना है ना, वो एक दो लाइन जो मैंने बोली थी, सारी तो नहीं, तो आप ये सॉल्व कर लोगे. सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू इफ यू हैव मार्क्ड बी दैट दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन. यार, mycoplasma passes through the bacteriological filters. They don't have a cell wall. And I told you, most of the antibiotics, something as simple, penicillin is a very simple antibiotic. Something as simple as penicillin, which is, you'll study narrow spectrum and broad spectrum of antibiotics, कि कौन सी एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारती है, और कौन सी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या सिर्फ ग्राम नेगेटिव को मारती है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आप पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी में, यार वो अटैक करती है सेल वॉल. उसका टारगेट होता है एक सिंपल एंटीबायोटिक जब मैन्युफैक्चर की जाती है लैब्स में, ड्रग लैब्स में, तो कि भाई ये ना अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देगी तो बैक्टीरिया मर ही जाएगा. तो बैक्टीरिया को ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स ही मार देंगे, क्योंकि सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है, पढ़ा हमने. तो भाई माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल इंटेलिजेंट था. देखो, एवरी लाइफ फॉर्म दैट इज एग्जिस्टेंट ऑन दिस प्लैनेट, आई कीप टेलिंग यू, हैज इंटेलिजेंस. माइकोप्लाज्मा को लगा, हाँ भाई बैक्टीरिया काफी टाइम से, ठीक है तुम लोग कर लो अपना, सेल वॉल है तुम्हारे पास, अच्छा खासा ग्लाइकोकैलिक्स है, कहीं भी ग्रो कर लो, मैं बनूंगा शातिर. और इसलिए ये काफी इन्फेक्टिव होता है. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. हाउ इज वायरस सो इन्फेक्टिव? Alright, they cause diseases in plants. Yes they do. And they are called PPLO. Pleuropneumonia like organism हमने अभी डिस्कस किया है. Now, next question is, viruses have. This is a very good question. ये क्वेश्चन मुझे आया पसंद. मैम ये क्यों आपको पसंद आया? इतना आसान क्वेश्चन है. पहली जो लाइन क्लास में आपने वायरसेस की डेफिनेशन लिखवाई है वही तो है. जरा करिए मार्क, आप आंसर मार्क कीजिएगा एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस. हाँ, सो नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए वी हैव टू बी स्मार्ट विद अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जाम. इट्स नॉट ओनली अबाउट concepts and question answer. It's not that straightforward, and life is never going to be straightforward for a doctor. है ना, पेशेंट की बॉडी एक बार खुल गई सर्जिकल टेबल पर तो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो नाउ पीपल, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु हैज मार्क्ड A. हाँ, एंड दिस क्वेश्चन वाज फॉर पीपल who would have marked both DNA and RNA. So ma'am kept saying that viruses are the entities which can be DNA viruses or RNA viruses, never both. ये भी लिखवाया था. लेकिन आप कहोगे मैम ये भी तो सही बात है. अब सुनो, नीट की गेम में जो फिल्ट्रेशन होती है टॉप रैंकर की, और वो बच्चा जिसको शायद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, सिलेक्ट हो जाता है ना, तो उसको भी तो फिल्टर करना है. तो तुम्हारा 15% पेपर ऐसा होगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि दो बातें सही हैं. वैसे यहां पे वर्ड था एंड, ठीक है. इस जो एंड, इट्स अ सिंपल इंग्लिश वर्ड एंड, राइट. पहली नजर में ऑन द फर्स्ट लुक इट्स या बोथ डीएनए आरएनए, लेट्स मार्क इट. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए बिकम्स द मोस्ट suitable option. This is how NEET happens. And also, if you look at the option D carefully, it's actually wrong. लेकिन it is a play of simple English. हमने क्लास में ये पढ़ा और मैंने आपको बोला था ये होगा. I've seen it happening. And का मतलब होता है भी. All my English and Hindi speaking lovely children. Okay,
जब हम बोलते हैं ऐसा एंड ऐसा इन एडिशन, तो हम बोलते हैं भी और एंड टुगेदर, प्लस प्लस। लेकिन दोनों में से एक होगा तो हम यूज करते हैं और। सो इट शुड बी और फॉर इट टू बी 100% करेक्ट। तो यहां उसने खेला। Okay, so the virus will have either DNA or RNA, as simple as that. दोनों नहीं होंगे। आया सबको समझ में ये बात? बिल्कुल अच्छे से आई। वेरी गुड, एब्सोल्युटली स्टनिंग क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, पढ़ाया था मैंने क्लास में, टाइप्स भी बताई थी, अच्छे से चमक गया था। भाई माइकोराइजा क्या होते हैं मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। अच्छा, बायो में जब भी कोई टर्म मुश्किल दे, देखो बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो anybody who claims that we don't like biology, we want to run away from biology, we like mathematics, everybody can fall in love with this subject if you know how to study. So break the term अगर नहीं चमक रहा है, इसको तोड़ दो। अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है। So congratulations to people who've marked symbiosis. So let me break it. Myco बोले तो फंगस, yes ma'am. राइजा बोले तो रूट, तो ये वो फंगस है मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज जो रूट्स ऑफ जिम्नो एंड एंजियो के साथ मिलकर रहती है इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, याद है वो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। फंगस को मिलती है जगह रहने को, अ नाइस आलिशान शेल्टर ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, मिलती है नहीं। एग्जाम्पल दिया था पाइनस एंड ऑर्किड्स। और हायर प्लांट को कुछ स्पेशल एनहांस्ड क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से, और हाइफे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। अच्छा, कोई भी है जो अभी भी क्लास में इस चैनल पर नए हैं, इस सीरीज में नए हैं, एवरी लिटिल पॉइंट, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन हमने क्लास में नोट्स की फॉर्म में लिखा है। आपको नोट्स, इनफैक्ट आज की भी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आकाश बाइजूस नीट चैनल। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ, so people, it was lovely to solve these questions with you. If you have gained a lot of confidence and happiness while doing this session of NEET previous year questions, put your comments in the comment section that we want more such sessions, we love this session. I would always like to know your views. Take care of your health, keep smiling, and remember, question तो यहीं से आएगा।